نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے۔ بہت سارے لوگ نا بچپن سے بڑی محبت والے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہی بڑے پیار والے ہوتے ہیں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی۔ چھوٹا سا بچہ حضور مسجد میں آئے نماز پڑھانے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے تو اس بچے نے فٹافٹ اٹھا لیے، اٹھا کے نا پھر اس نے وہ جوتے صاف کیے، صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے، چھوٹی سی عمر ہے، اس نے حضور کے سامنے نا وہ یوں کر کے نالین شریف رکھے، کریم رسول نے پہن لیے، حضور مسکرا کے چلے گئے۔ کیسا نصیبوں والا بچہ ہے۔ اگلی صبح پھر حضور نماز کے لیے آئے تو اس نے اسی طرح محبوب نے جوتے اتارے تو اس نے اٹھا لیے، پھر حضور کے جوتوں کو صاف کیا، پھر اپنے پاس سنبھال لیے۔ حضور نے نماز پڑھائی، فراغت کے بعد کریم نکلے تو اس نے پھر اسی طرح جوتے رکھے۔ تیسرا دن ہوا، وہ یوں سامنے کھڑا ہے، حضور نے یوں مسکرا کے دیکھا، کریم نے دیکھا، محبوب نے جوتے اتارے، اس نے تھامے، صاف کیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور تکمیل نماز پر باہر نکلے، جوتے اس نے سامنے رکھے۔ اب حضور نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ یعنی حضور نے پوچھا، نبی کریم میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ یعنی حضور نے خود حال پوچھ لیا، نبی کریم نے حال پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں نام۔ باپ کا کیا نام ہے؟ حضور فلاں بن فلاں۔ کس قبیلے سے ہو؟ یا رسول اللہ فلانے قبیلے سے۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میرے جوتے اٹھاؤ، صاف کرو، پاس رکھو، جب نکلوں تو دو؟ عرض کرنے لگے حضور کسی نے بھی نہیں کہا، میرا دل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں کہا۔ محبوب کریم نے وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ رخ پھیرا مسجد کی جانب، کعبے کی جانب منہ کر کے حضور فرمانے لگے اے اللہ، یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جیسے یہ میری خوشی چاہتا ہے تو بھی اسے خوش کر دے۔ اس کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا، اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابوبکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ بخاری ہے، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے تین کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے تین کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا، تین کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی ایک منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو ایک منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔
लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिर, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। और मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम आबू फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। मुस्तफ़ा करीम बैठे थे तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखें बीबी साहिबा बगैर बताए आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा आई, हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के। हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहिबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, खोल के पेश की। बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, तो हुजूर मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं। रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी। फरमाया चल आदि तू खा, आदि मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। और मैं बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फरमाया बिलाल तू हिजरत कर जा मदीने की तरफ, चला जा। हजरत बिलाल ने अर्ज की हुजूर मैं गुलाम हूँ, खादम हूँ, हर हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है, लेकिन एक अर्ज करनी है सिर्फ। हुजूर ने फरमाया बिलाल करो। कहा या रसूल अल्लाह आप मदीने आएंगे ना, आप आएंगे मदीने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, फरमाया हाँ मैं भी आऊंगा। कहा हुजूर बस ठीक है, बताएं कब जाना है, बस इतनी सी बात है। सरवरे कौन मकान सय्याह मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल ये 16 मर्द औरतों बच्चों पर मुश्तमिल 16 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला है, इस काफिले के ऊपर तुझे मैं अमीर मुकर्रर करता हूँ, तू इनको लेके जाएगा मक्के से मदीने 250 किलोमीटर का सफर, 250 मील का सफर। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिले के अमीर बन के, सख्त गर्मी का मौसम, हजरत बिलाल के हाथों में तलवार है, एक हाथ में नेजा है, एक हाथ में तलवार है, तीर आपने पीछे बांध रखे हैं पुश्त पे, और आप लेके जा रहे हैं, कभी काफिले के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। वो औरतें और बच्चे जरा परेशान होते तो हजरत बिलाल फरमाते परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें मुस्तफा करीम ने भेजा है, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, मेरा यकीन बड़ा मजबूत है। अब ये काफिला जा रहा है, हजरत बिलाल हबशी ने बखैर वाफियत सिपा सालार बनकर इस काफिले को पहुंचाया मदीने में। अब मदीने पहुंचा के सारे लोग मदीने वाले मदीने में लग गए अपने अपने काम। हजरत बिलाल पहले दिन ही आके मदीना मुनव्वरा से बाहर सरहद पे खड़े हो गए। क्या बिलाल इधर क्या कर रहे हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया था मैं आऊंगा, अब मेरा तो काम है नबी पाक का इंतजार करना, इस्तकबाल करना। हजरत बिलाल रोज इंतजार करते, रसूल पाक तशरीफ ले आए, हुजूर हुक्म क्या है? फरमाया मस्जिद बनानी है, मस्जिद एक कुबा बन रही है,
तो सब मजदूरों से ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई तो सबसे ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद बन गई, अब जनाब अजान का मामला शुरू हो गया, मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाएं। एक सहाबी कहने लगे हुजूर हम ऊपर आग जलाया करेंगे, जब आग जलेगी तो लोगों को पता चलेगा नमाज का वक्त हो गया। एक ने कहा हम बड़ी दफ मंगवाते हैं, दफ बजाएंगे, नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने फरमाया जाओ सुबह फैसला करेंगे। रात से सहाबा सोए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में कोई अजान पढ़ रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया, माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा अम्मा तू मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा पुत्र तू बता, आखिरी हिज की ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा। बस करने लगा अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर, जब लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, माँ बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूँ। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई, तो वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो डर जाए, उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। पर कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो वुसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे, ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे। अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी थी लेकिन इसने अहमियत ही नहीं समझी, ये इस तरफ इसने तवज्जो ही नहीं की। फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने भी ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब। हज़रत अली फरमाते हैं मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने दाने को चीरा और मुझे उस रब की कसम जिसने हर जान को पैदा किया, मुझसे खुद नबी पाक ने फरमाया था अली तुमसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा। और हुजूर ने मुझसे कसम उठा के फरमाते हैं मुझसे नबी पाक ने फरमाया था तुमसे सिर्फ मुनाफिक की बुग़्ज़ रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे मोमिन बंदो, जिंदगी में जब तुम्हें मुश्किलात घेर लें, आजमाइशें चारों तरफ से तुम्हारा घेराव करें, तो उस मौके पर अगर तुम चाहो कि कोई चीज तुम्हारी मददगार बन जाए तो फिर तुमने इस तरह करना है कि सब्र और नमाज से मदद तलब कर। रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे, वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करते, सेठों नवाबों को ना बताते, फिर दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। और मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं
जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा।